Welcome back to Dr. Shahin classes. And today I will explain the second part of previous year questions and these questions are December 2018. आपको मैंने इससे पहले एक पार्ट में क्वेश्चन सॉल्व कर चुकी हूँ और ये जो है वो नेक्स्ट पार्ट है आपका. चलिए शुरू करती हूँ क्वेश्चन नंबर 15. So one of the most flexible meters that is a 5-foot line and it was introduced by Geoffrey Chaucer in the 14th century and has since then become the commonest of the meters in English poetry. यानी सबसे पहले तो आपको देखना है it is a 5-foot line. 5-foot line किस में होता है? आयम्बिक में. तो आपका ऐसे ही आंसर ए हो गया. तो आयम्बिक पेंटामीटर में जो होता है 5-foot line. So it was introduced by Geoffrey Chaucer in the 14th century and since then it has become the commonest of meters in English poetry. So iambic we have 5-foot. Simple. So correct answer would be here A. Now next question. Next question is here. The poet was of the ordained generation and was only briefly a member of the Communist Party, and in his poem The Pylons he averred that the pylons are bare like nude giant girls that have no secrets. So this prompted the label pylon poets for the new generation of poets who were happy to use the gas works or pistons of the steam engine as poetic imagery and named the poet. Okay. So आपको देखते हैं it was in his poem The Pylons. So किसने लिखा The Pylons? So The Pylons it was written by Stephen Spender. Stephen Spender has written a poem called The Pylons. वहां से ये टर्म लिया गया है. So आपका करेक्ट आंसर ऐसे ही हो जाएगा ए. So he averred that the pylons are bare like nude giants girls that have no secrets. So correct answer is here Stephen Stem. So pylons, pylons and 1930s poets यानी स्पेशली ब्रिटिश पोएट्स का ग्रुप है ये. तो इसमें आ जाते हैं आपको राइटर्स. इसमें पोएट्स लाइक आ जाते हैं स्टेफन स्पेंडर, लुइस मैकनीस, W.H. ऑर्डेन एंड क्रिस्टोफर आइजरवुड एंड सिसिल डे लिविस. सो ये सारे जो पोएट्स हैं वो आपको आ जाते हैं पायलन पोएट में एंड द 1930s ब्रिटिश पोएट में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर. Alas, what boots it with incessant care to tend the homely slighted sequestered and strictly meditate the thankless muse, we were it not better done so others used to sport with amaryllis in the shade or with the tangles of Neera's hair. So who are amaryllis and Neera in the above extract from John Milton's Lycidas? First option is Amaryllis is Ocephorus mentioned in Shakespeare's romantic comedies. Neera, a minor character in Locke's Labour's Lost. Second option is both were one-time lovers of Lycidas, the Shepherd. Third option is both were goddess of love and war, appearing in Greek pastoral poetry. And fourth is Amaryllis is Sephardus mentioned in ancient pastoral poetry, notably in Virgil's Eclogues, Neera and nymph who appeared in Virgil's Eclogues. So your correct answer would be here D, because Amaryllis is a shepherdess and mentioned in ancient pastoral poetry and notably in Virgil's Eclogues. Neera, a nymph who appeared in Virgil's Eclogues. So Milton का जो Lycidas है, it is a pastoral romance. Okay. एक क्वेश्चन आपका ये भी बन जाता है पेस्टोरल ये किस टाइप का वर्क है. मिल्टन का लिसिडस. सो इट इज अ पेस्टोरल एलिसी एंड इट वाज डेडिकेटेड टू एडवर्ड किंग ना हिज फ्रेंड एडवर्ड. ये भी क्वेश्चन बन गया आपका. किसको डेडिकेट किया गया लिसिडस? तो इट वाज डेडिकेटेड टू एडवर्ड किंग एंड हु वाज हिज फ्रेंड एट कैम्ब्रिज. ओके क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर. Evelina was published in 1778. First option is posthumously, second is under a pseudonym, third is using the name Fanny Burney, fourth is anonymously. So
इवेलेना वॉज पब्लिश इन 1778। तो ये क्या है कि कैसे पब्लिश हुआ, पोस्टमसली हुआ या अंडर सीडोनिम या यूजिंग द नेम फैनी बर्नी या एनिनमसली। तो यह एनिनमसली हुआ विथ नो नेम, ठीक है। अब इवेलेना किसने लिखा, तो फ्रांसिस बर्नी ने लिखा, फ्रांसिस बर्नी ने लिखा है इवेलेना। सो इवेलेना इज a novel and subtitle is history of a young lady's entrance into world। इसका सबटाइटल जो है हिस्ट्री ऑफ यंग लेडीज एंट्रेंस इनटू वर्ल्ड है इसका सबटाइटल इवेलेना का, और इसका पब्लिकेशन है 1778 है। और इसका जो ऑथरशिप है वो तो पहले एनोनिमसली ही था इन विथ नो नेम, एंड बाद में इसका जो है वह नेम डिस्क्लोज हुआ। तो किसने डिस्क्लोज किया, जॉर्ज हडर्सफोर्ड ने इसको डिस्क्लोज किया, ठीक है, इसके नेम को जॉर्ज हडर्सफोर्ड ने इसको डिस्क्लोज किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग आर रेफर्ड टू एज स्कॉटिश चौसरियंस। स्कॉटिश चौसरियंस में कौन कौन से पोएट आते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज थॉमस हॉकलिफ, सेकेंड इज रॉबर्ट हैंड्रिसन, थर्ड इज जॉन लीडगेट, फोर्थ इज विलियम डनबार। द राइट कम्बिनेशन अकॉर्डिंग टू द कोड इज, कौन कौन से आते हैं। तो राइट कम्बिनेशन के अकॉर्डिंग हम देखते हैं ए एंड 2 and 4, रॉबर्ट हैंड्रिसन एंड विलियम डनबार both are referred to as Scottish Chaucerians, so your correct answer is here D, ठीक है, रॉबर्ट हैंड्रिसन एंड विलियम डनबार आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव here, and the question is here, the enigmatic castle which attempts to reach in vain in French Kafka's The Castle belongs to. First option is Count Aloof West, second is Count Strange West, and C is Count West West, and fourth is Count East West. Okay, so here correct answer is here Count West. Okay, because the castle which K attempts to reach in vain in French Kafka's novel belongs to काउंट वेस्ट वेस्ट, ठीक है। ये फ्रेंच काफका काफी इंपॉर्टेंट राइटर है, आपको पढ़ना चाहिए नेट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एस.टी. कॉलरिज's डिजेक्शन एंड ओड ओपन्स विद एन एपिग्राफ विच इज अ रेफरेंस टू अ बैलेड, है ना। यह जो है डिजेक्शन एंड ओड जो है यह एक एपिग्राफ के साथ ओपन होता है जो कि रेफरेंस है बैलेड का। वो कौन सा बैलेड है। फर्स्ट ऑप्शन इज बैलेड ऑफ सर पैट्रिक स्पेन, सेकेंड इज बैलेड ऑफ गुडली फेयर, थर्ड इज बैलेड ऑफ जिबेट, एंड फोर्थ इज ला बेलेडियम सेंस मर्सी। सो इट वॉज ballad of Sir Patrick Spens. So correct answer is here ballad of Sir Patrick Spens। इसमें जो कोलरिज का डिजेक्शन एंड ओड है वह ओपन होता है एक एपिग्राफ से जो कि एक बैलेड का रेफरेंस है। वह कौन सा बैलेड है। सो बैलेड ऑफ सेंट पैट्रिक स्पेंस है। सो ये जो बैलेड ऑफ सेंट पैट्रिक स्पेंस ये किसने लिखा, तो एक्चुअली इसका कोई राइटर नहीं है, एनोनिमस राइटर है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना, ये भी एक क्वेश्चन बनता है, हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि हु रोट बैलेड ऑफ सर पैट्रिक स्पेंस। सो इट राइटर इज एनोनिमस एंड इट इज स्कॉटिश फॉक ना, यह एक स्कॉटिश फॉक बैलेड है, स्कॉटिश फॉक बैलेड है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव हियर, आइडेंटिफाई द फायरसाइड पोएट्स ऑफ द यूएस। और फायरसाइड पोएट्स जो है मतलब ये ग्रुप है फायरसाइड पोएट्स, कौन कौन से हैं इसमें। फर्स्ट ऑप्शन इज एमी लवेल, एमिली डिकिंसन, फिलिप व्हिटली, विलियम कल्लन ब्रांट, H.W. Longfellow and Oliver Holmes, and third option is Mariam Moore, Elizabeth Bishop, Anne Seton, and fourth option is T.S. Eliot, Wallace Stevenson, William Carlo Williams। तो सबसे पहले देखिए फायर साइड जो पोएट है उसमें कौन कौन से आते हैं। तो जो फायर साइड पोएट्स है उसे हम स्कूल रूम या हाउस होल्ड भी कहते हैं ना, स्कूल रूम या हाउस होल्ड पोएट्स भी कहते हैं। और ये जो है यह 19th सेंचुरी ग्रुप्स ऑफ पोएट्स हैं। ओके, ये ध्यान में रखना है आपको, 19th सेंचुरी अमेरिकन पोएट है ना, कौन सा है, तो ये अमेरिकन पोएट्स है। अब इसमें कौन कौन से आते हैं, तो इसमें आते हैं H.W. लॉन्गफेलो जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें है, हाँ H.W. लॉन्गफेलो आते हैं इसके अंदर।
और विलियम कोलिन ब्रायंट आते हैं इसमें, ऑप्शन में आप देख रहे हैं कोलिन ब्रायंट भी आते हैं, और जे.जी. व्हिटियर आते हैं, ये तो इसमें नहीं है। फिर नेक्स्ट इज जेम्स रसेल एंड ओलिवर होम्स, जैसे कि यहाँ पे है। तो ये सारे जो पोएट्स आते हैं वह फायर साइड में आते हैं, तो ये आपका ऑप्शन बी के अंदर में है, तो आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव हियर, थॉमस नेसेस द अनफॉर्चुनेट ट्रेवल इज नरेटेड बाय, किसने नरेट किया? फर्स्ट ऑप्शन इज बिली फॉक्स एन इंग्लिश हाईवेमैन, सेकेंड इज बेन लाइट कोर्स papist, third option is Jack Wilton an English space, and fourth option is Peter Marcest a soul Calvinist। तो देखिए द अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर ये किसने लिखा? तो टॉमस नैश ने लिखा। एंड टॉमस नैश का ये जो अनफॉर्चुनेट ट्रेवल है वह क्या है? पिकारिस्क नॉवेल है। ये भी आपको एक क्वेश्चन बन गया। So what is picaresque novel? A picaresque novel is a novel where the writer portrays the hero as rogue, cynic, and through which the writer depicts the social realism through farce and comedy। तो ये एक आपका पिकारिस्क नॉवेल भी है, द अनफॉर्चुनेट ट्रेवल, टॉमस नैश का। अब ये किसके द्वारा नरेट किया जाता है? तो ये है आपका जैक विल्टन, है ना, ऑन इंग्लिश पेज। तो ये करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। अब एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इससे आपको देखने को मिलता है कि इसका जो सब टाइटल है वह द लाइफ ऑफ जैक विल्टन भी है। द लाइफ ऑफ जैक विल्टन, लाइफ ऑफ जैक विल्टन इसका सब टाइटल भी है अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर का, और इसका नरेटर भी है जैक विल्टन इंग्लिश पेज। सो ये करेक्ट आंसर इज हियर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है यहाँ, द चैप्टर ऑन द फॉल ऑफ द रूपी you may omit, it is somewhat too sensational, so even these metallic problems have their melodramatic side। The fall of the Indian rupee in the final decades of the 19th century is referred in one of the Oscar Wilde's play Identify the Play। यानी ऑस्कर वाइल्ड के प्ले में एक दिया गया है कि द फॉल ऑफ द इंडियन रूपी इन द फाइनल डिकेड्स ऑफ 19th सेंचुरी। ये आपको देखना है कौन सा प्ले है। फर्स्ट ऑप्शन इज लेडी विंटरसन फैन, सेकंड इज एन आइडियल हस्बैंड, एंड थर्ड इज द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग, एंड फोर्थ इज द वुमेन ऑफ नो इम्पोर्टेंस। तो देखिए द वुमेन ऑफ बीइंग अर्नेस्ट में आपको ये डिस्क्रिप्शन देखने को मिलता है। तो ये करेक्ट आंसर इज द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट। तो सो द एक्चुअली जो ऑस्कर वाइल्ड है जो इंग्लिश ड्रामेटिस्ट एंड पोएट है वह इनकी जो ये प्ले है द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, इट वाज पब्लिश्ड इन 1895। 1895 में ये पब्लिश हुई थी, एंड इट इज अ विट्टी प्ले ना, यह विट्टी प्ले है एंड फार्सिकल प्ले है। ओके, विट्टी प्ले एंड फार्सिकल सेटायर, एंड थ्रू विच Oscar Wilde he mocks the Victorian conventions and Victorian social system। And what happens here, we have two characters, Jack ना, इस वर्क में हमको जैक एंड अल्गेनन है, लियनर्ड, टू कैरेक्टर्स है, एंड दिस टू कैरेक्टर्स क्रिएट फॉल्स आइडेंटिटीज। ये दो कैरेक्टर्स इसमें फॉल्स आइडेंटिटी क्रिएट करते हैं, और इनको लगता है कि अर्नेस्ट होने से अच्छा है, सिंसियर होने से अच्छा है कि नाम ही हम अर्नेस्ट रख ले पॉपुलरिटी के लिए, लेकिन इनका सैड एंडिंग होता है। ठीक है, सो यू मस्ट रीड दिस नॉवेल, जैसे कि मैं पढ़ी हूँ आपको बताई हूँ। एंड नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी इन्वोक्ड to describe a form of new historicist criticism। First is cultural materialism, second is archaeology of social constructs, third is genealogy of patriarchal discourse, and fourth is post-structural recovery of authorial intent। Okay, so आपका जो है which of the following would not be invoked to describe a form of new historicist criticism। तो ये आपका हो जाएगा post-structuralism revolt post structural recovery of authorial intent। Okay, so your correct answer would be here D। Okay, and coming to the next question here, क्योंकि इसमें जो है पोस्ट स्ट्रक्चरल रिकवरी ऑफ ऑथोरियल इंटेंट ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है द ट्यूटलर फिगर ऑफ फेडरिको ग्रेसिया Lorca's Element for Agnesia
And Stances Mijasis was a popular metaphor and writer, a spy who helped the revolutionaries during the Spanish Civil War. Third is a popular priest and poet. And fourth option is a revolutionary who was associated with Che Guevara. ओके, तो आपका जो ये है ट्यूटुलर फिगर, ये देखिए लेमेंट फॉर एग्नेसिया जो है यह एक्चुअली है एलेसी, ये तो पता है आपको। सो एलेसी है एंड ये किसको माउंट करता है, एलेसी में हमें पता है कि किसी न किसी को माउंट होता है, यानी किसी की ना किसी को हम लेमेंट करते हैं। तो इसमें क्लोज फ्रेंड को यह लेमेंट करता है, जो पोएट है वह अपने क्लोज फ्रेंड के डेथ को लेमेंट करता है। एंड ए पॉपुलर मेटाफर एंड राइटर ना, इट वाज पॉपुलर मेटाफर एंड राइटर था। सो ये करेक्ट आंसर इज हियर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन early African American text like slave narratives were often described as told to narrative as their authors dictated their experiences. The person who noted down the experiences are: first is translator, second is slave drivers, third is abolitionists, and fourth is amanuenses. So your correct answer would be here amanuenses. No? Those who the persons who down their experiences. Next question is here one of the less noticed and acknowledged distinction the contemporary tales is that contemporary tales का क्वेश्चन आपको बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो यहाँ पर क्या लेस नोटिस्ड और एक्नॉलेजमेंट डिस्टिंक्शन है कंटेम्पररी टेल्स में? फर्स्ट ऑप्शन इज इट uphold the idea that we cannot divorce poetry from knowledge because poetry itself is an object of poetry. It altered us to the term author somehow who is both an person or one who gives increase the best description of Chaucer himself. Third is it married domesticity city to divinity, the bakers live with the bread of life. And fourth is instead of revealing England's divisions it reveals its diversity. So the correct answer would be here fourth. Instead of revealing England division it reveals its diversity. तो देखिए ये 14th सेंचुरी का पोएम है, किसका? चौसर का। तो यह एक पॉलिटिकल पोएम कह सकते हैं आप इसमें। What Chaucer has satirized the social and political issues of the 14th century England को यह सटाराइज करता है इसमें। और इसमें जो पिलग्रिम्स होते हैं वह जो होते हैं टोटल 31 होते हैं चौसर और हैरी बली को मिला करके, और ये प्लान करते हैं 124 स्टोरी को नरेट करने का, जिसमें से 220 ही कंप्लीट हो पाता है, 4 इनकम्प्लीट होता है। ठीक है, so it is a political satire, you can say. There are the characters like and who here this and through the characters he satirized the 14th century England. So thank you.